Yes, in exercise 5.2, come to the first. Now the word problems which we are solving are one of the easiest word problems. Reason that they are, I call them easier is because उनका best क्या है पता है? There are only two people. एक को x लेना है, दूसरे को y लेना है. Till 8th standard word problems में बहुत सोचना पड़ता था. Linear equation का word problems are one of the easiest ones. Okay, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है. There will be two things. एक को x लेना है, दूसरे को y लेना है. Okay. For example, if I have a question, example के लिए, if I have a question that Ram is elder than Sita by 3 years. Just an example I am giving. If this is your question pattern, so why this sum is easy? Linear equations का word problem तुम्हारे like word problem सुनते ही tension आ जाता है because नाम में ही problem है, word का problem, ठीक है? So students get afraid. Why? Because questions बड़े बड़े होते हैं, 3-3, 4-4 लाइन का questions होता है. So students को question देख के डर जाता है. But one of the easiest one is word problems. अच्छा, कौन सा word problem सबसे easy होगा मालूम है? जो सबसे बड़ा question होता है ना, वो word problem हमेशा easy ज्यादा होता है. ठीक है? Now let's see. If this is a condition, Ram is elder than Sita by 3 years. Why linear equation का word problem easy है? Because किसी एक को x लेना है और दूसरे को y लेना है. ठीक है? Now how come this is easy? Ram x is equal to elder plus then before sign Sita y by after sign 3 years 3. Okay, easy है. इससे easiest technique कोई नहीं है. One of the easiest things are the word problems. Think what concept is. You have to take each word seriously. तुमको हर एक word seriously लेने का है. जब तुम ले लो, consider करना start कर दोगे ना, you will never get it wrong. मतलब method ऐसा है that it's such a foolproof method कि तुम्हारा sum कभी wrong आएगा ही नहीं. Some school teachers teach it this way. Ram is elder than Sita by 3 years. Then they tell you, देखो राम बड़ा है सीता से, तो अगर सीता को मैंने y लिया तो राम उससे बड़ा है. कितना साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है. तो राम यानी x, y मुझसे बड़ा है, 3 साल बड़ा है. तो राम छोटा हो गया, सीता बड़ी हो गई. मतलब they confuse you a lot with your explanation. There is no such explanation required. तुमने नोटिस किया मैंने एक भी चीज एक्सप्लेन नहीं किया, राम बड़ा है सीता बड़ा है, कुछ नहीं बताया. मैंने सीधा कॉन्सेप्ट यूज किया. इज यानी इक्वल टू, एल्डर यानी प्लस, देन यानी बिफोर साइन, सीता यानी y, बाय यानी आफ्टर साइन 3 years. So there are simple techniques. Now I am giving you certain rules. Once again, is, was, will be, present tense, past tense, future tense का मतलब होता है इक्वल टू, एल्डर, ग्रेटर, मोर का मतलब प्लस, यंगर, स्मॉलर, लेस का मतलब माइनस, ट्वाइस, थ्राइस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, देन और बाय ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. This means a variable before the sign, a constant after the sign. Any questions here? Okay. In an envelope, come to the first sum. In an envelope, there are some 5 rupee and 10 rupee coins. Total amount of these notes together, sorry, coins nahi, notes hai. Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupees are less by 10 than the number of 10 rupee. Find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. Okay. Now please read this question carefully. In an envelope, there are some 5 rupee and 10 rupee notes. तुम्हारे पास 5 rupee का notes है और 10 rupee का notes है. ठीक है? कुछ 5 rupee का और कुछ 10 rupee का notes है. कितना है मालूम नहीं. ठीक है? Okay. तो पर ये मालूम है इसका डिनोमिनेशन 5 rupee वाला है और इसका डिनोमिनेशन 10 rupee वाला है. Don't say sir 3 notes. मैंने सिर्फ एग्जांपल दिखाया. ठीक है? टोटल अमाउंट मैं सब नोट्स को काउंट करूंगा ना तो 350 रुपया, 350 रुपीज. ठीक है? नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स कितना है? कितने 5 रुपी नोट से पता है क्या? नहीं. कितना 10 रुपी नोट से पता है क्या? नहीं. डिनोमिनेशन मालूम है, डिनोमिनेशन 5 रुपए का है, 10 रुपए का. ठीक है? ओके. नाउ we don't know the number of, but it is written that number of 5 rupee notes are less by 10 than the number of 10 rupee notes. Find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. हमको क्या नहीं मालूम, उस किसको XY लेना है? आंसर XY किसको लोगे? 5 rupees and 10 rupees note.
इसलिए मैंने 1000 बार का क्वेश्चन ठीक से रीड करो। 5 रुपी और 10 रुपी नोट्स को XY लोगे? किसको XY लोगे? ठीक से सोचो। नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ नोट्स को, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स को, 5 रुपी नोट्स को X नहीं लेना है। नंबर ऑफ कितने 5 रुपए का नोट है, कितना 5 रुपए का नोट है नहीं मालूम ना, तो अपन क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स बी ये समझने का था। वो कुछ नहीं, वो फर्स्ट एग्जांपल में तुम, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट समय इमीडिएट समझ में आ गया तो तुम मेरे को सिखाओगे ना, कल से तू इधर खड़ा हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है ना, फर्स्ट सम समझना पड़ेगा, ठीक है? सो कितने नंबर ऑफ नोट से, 5 रुपए का X नोट से, 10 रुपए का Y नोट से। अच्छा, तो अभी तुम भैया के पास गए, ठीक है, सामान खरीदने के लिए, ठीक है, जो भी तुम्हारा नियर बाय कोई भी स्टेशनरी शॉप या कोई रहेगा बनिया, उसके पास तुम गए सामान खरीद, उसने बोला तुमको 1000 रुपया लगेगा, ठीक है, सामान का, तो तुमने 1000 रुपया काउंट करना चालू किया, ठीक है? सो तुमने नोट निकाला, तो 100 रुपए का 10 नोट है, तो 100 रुपए का 10 नोट मतलब कितना हो गया? 1000 रुपया। सिंपल कैलकुलेशन है। तुमने कैसे किया? 100 रुपए का 10 नोट 1000 रुपया कैसे हुआ? 100 रुपीज का नोट था और वैसे 10 नोट थे, तो तुमने एक्चुअल में किया क्या? तुमने 100 रुपए का नोट ऐड किया, मल्टीप्लाई। तुमने ऐसा किया है क्या? बताना मेरे को। नो सर। तुमने ऐसे कैलकुलेशन किया था क्या? 100 रुपया प्लस 100 नहीं ना, बिकॉज नाउ यू आर ग्रोन अप, ठीक है? हाँ, तुम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हो, देन इट इज कैन अंडरस्टैंड। वो एक बोलेगा ये 10 रुपया प्लस 10 20, पापा 20 रुपया हो गया, फिर वापस 10 30, तभी डैडी बोलेगा अरे वाह शाबाश। अब तू 9th में जाके ऐसा गिन के देगा, पापा 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, एक ऐसा कान के जो डैडी बजाएगा, बोलेगा ये अभी इतना बड़ा घोड़ा हो गया, उसको ये गिनना नहीं आता कि कितना नोट है और कितना गिनना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 100 रुपए का 10 नोट तो तुम ऐसा नहीं गिनोगे ना, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तुम कैसे गिनोगे? 100 इंटू 10। अब मुझे बताओ, तुम बनिए के पास गए, तुमने 5 रुपए का 10 नोट दिया और 10 रुपए का 5 नोट दिया, कितना हो गया? 50। 5 रुपए का 10 नोट दिया, 10 रुपए का 5 नोट दिया, 50 टोटल 100 टोटल 100 हुआ। कैसे 100 हुआ? 5 रुपए का 10 नोट यानी 50 रुपीज, 5 10 50, 10 रुपए का 5 नोट यानी 50, 50 प्लस 50 कितना होता है? 100, बराबर? 100। तो तुमने कैलकुलेशन कैसे किया? तुमने 5 रुपए का 10 नोट और 10 रुपए का 5 नोट कैलकुलेट किया, ये 50 हुआ, ये 50 हुआ, फिर बाद में क्या बोला? पापा ये 50 है, ये 50, आगे का मेरे को नहीं आता है, ऐसा बोला था क्या? नो सर। अब वही चीज जो तुमने किया ना, प्रैक्टिकली किया ना, वो प्रैक्टिकली चीज ही इधर करने का है। जो तुमने प्रैक्टिकली समझा वही चीज इधर करने का है, ठीक है? प्लीज म्यूट करो। ओके, so currently what we know is that there are certain number of 5 rupee and 10 rupee notes. So let's start. Let the number of 5 rupee notes be X and the number of 10 rupee notes be Y. ठीक है? ओके, अब फर्स्ट कंडीशन रीड करते हैं। टोटल अमाउंट टुगेदर इज 350. Total amount is 350 rupees. अगर टोटल अमाउंट 350 है, मतलब 5 रुपी का X नोट्स और 10 रुपी का Y नोट्स मिलके 350 है। सो वो कैलकुलेट कैसे हुआ? 5 रुपी का 5 नोट्स था, तो कैलकुलेट कैसे किया तुमने? 5 into 5. 5 रुपी का X नोट है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे? 5 into X. I hope everyone is clear ये ऐसा क्यों किया है? Yes sir. Yes sir. ओके, 10 रुपी का Y नोट से तो कितना हो गया? 10 into Y. तो टोटल तुमने भैया को कितना दिया?
5x plus plus 10y. 10y equal to 350. टोटल अमाउंट दिया 350। तुमने 5 रुपए का एक्स नोट, 10 रुपए का वाई नोट मिला के, पूरा मिला के, टोटल मिला के कितना रुपया दिया उसको? 350 रुपया, 350 रुपीज। समझ में आया? नाउ दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, अब मैं दूसरा इक्वेशन पे जाऊंगा। बट बिफोर आई गो टू सेकंड इक्वेशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक दिस इक्वेशन इजी। कैसे कर सकते हैं? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 5 डिवाइड बाय 5 बोलो, और एक तरीका है मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 1/5। डिवाइड बाय 5 का मीनिंग ही होता है मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 1/5 और डिवाइड बाय 5 मीनिंग इज सेम। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। सो डिवाइड बाय 5 किया तो क्या आ गया? x प्लस 2y। 5 से डिवाइड किया तो 70। That's my first equation. Now we have to go to the second equation. Now for the second equation, come to the second line. सेकेंड लाइन के लिए अभी हम लोग रूल्स यूज करेंगे। जो रूल अभी अपन ने, मैंने थोड़ी देर बताया था ना, थोड़ी देर पहले, वो रूल्स यूज करने का है। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। अब यहाँ पे रूल्स यूज होएगा। सो अभी डोंट वरी, रूल सर मेरे पास रूल लिखा हुआ नहीं चलेगा, मैं सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो रूल क्या लिखा हुआ देखो। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स is less by 10 than the number of 10 rupee notes. ठीक है? Are you clear everyone? ये स्टेप समझा? इसी स्टेप को, ये पूरा स्टेप लिखने के बदले तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एज पर गिवन कंडीशन। ठीक है, मैंने अभी पूरा स्टेप लिखा है, उसके बदले लिख सकते हो एज पर गिवन कंडीशन। ओके, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। कितने नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स है? याद रखना, स्टूडेंट्स इधर ही कंफ्यूज होता है और यही सबसे इजी चीज है। एक एक वर्ड को सीरियसली लो, कभी रॉन्ग आएगा ही नहीं। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स यानी x इज equals to लेस minus यहां तक तो समझ में आ गया। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स यानी x इज लेस बाय 10। बाय वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था। बाय वर्ड का मतलब होता है नंबर constant after the sign. कांस्टेंट आफ्टर द साइन बाय 10। देन का मतलब होता है वेरिएबल बिफोर द साइन। देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। व्हाट आर द नंबर ऑफ 10? So x is equal to y minus 10. समझा कैसे किया? Yes. ऊपर का जो एरो बनाया वो सब बनाने का नहीं है, वो सिर्फ तुमको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाना है। ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स इन x is less by 10 then the number of 10 रुपी नोट्स। ये बहुत फास्ट होएगा, इतना टाइम नहीं लेगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इट इज टेकिंग टाइम। x minus y is minus 10. Now this is your second equation. Now look at both the equation. अब अपना स्टेप आता है simultaneous का। Now tell me, simultaneous का स्टेप बताओ। I am having these two equation. किसका कोएफिशिएंट इक्वेट करना है? x का कि y का? x का, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो तुम्हारा टाइम बच गया। Now tell me, सेम साइन है कि अपोजिट साइन है? Same sign. सबट्रैक्ट करोगे कि ऐड? Subtract equation, first or second equation है, subtract equation 2 From 1. Now subtraction के टाइम पे मैंने कहा था थोड़ा we have to be little bit careful with this step, okay? तो तुमको concentrate from पे करना है। From तुमने क्या लिखा?
1 तो फिर 1 पहले आएगा। वो तुम कोई भी लिखोगे चलेगा, तुम ये मत बोलो नहीं सर आपने जो लिखा वही हमको लिखना है क्या, नहीं, यू राइट विच एवर यू वांट। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज फ्रॉम जिसको लिखा है वो पहले लिखना। फ्रॉम 1 लिखा है मैंने 1 को पहले, एंड उसका रीजन तुमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, ऐसा क्यों है, 2 बाद में आएगा। Okay, now let's do subtraction. Subtraction में there is a sign change. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब ये सब साइन भूल जाओ, अभी इनकी साइन नीचे लिखी हुई है, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये कैंसिल करने के लिए किया है, प्लस 2y प्लस y प्लस 2y प्लस y, 20 70 प्लस 10। अच्छा एक काम करना, बस एक बार है ना चेक करना क्वेश्चन में कुछ चेंज था क्या, क्योंकि जस्ट डू द करेक्शन वंस अगेन। द करेक्शन गोज नंबर ऑफ 5 रुपी नोट इज मोर, है ना, मोर बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो यहाँ पे प्लस साइन है, इज दैट क्लियर? प्लस साइन है, प्लस साइन है, साइन चेंज के बाद इधर माइनस आएगा। नाउ टेल मी 70 minus 10 will become 60 so y is equal to 60 upon 3 y is 20 y मिल गया, सब्स्टिट्यूट इधर सब्स्टिट्यूट करें, फर्स्ट है सेकंड, सेकंड में करना, सेकंड ज्यादा इजी है। सो x minus y 20 है is 10, so what is x is equal to 20 plus 10 यानी 30। x का y दोनों आ गया, फाइनल आंसर। therefore the number of 5 rupee notes is 30 and the number of 10 rupee notes is 20. Is this clear everyone? Yes sir. The total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50. So there are certain number of lions, there are certain number of peacocks. ठीक है? And total number of lions and peacocks are 50. Okay? So जैसे 5 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट था, वैसे यहाँ पे total number of lions and peacocks है. Okay? So we don't know the number of lions and peacocks. The total number of their legs is 140. ठीक है? So total number of legs is 140. Find the number of lions and peacocks in the zoo. So question is to find the number of lions and peacocks. So how will I start? Tell me. Number of lions. The number of lions, The number of lions, X, and the number of peacocks. dy. And the number of peacocks by. ठीक है? Okay, so let's start. Total number of lions and peacocks. 50. Mute करो please. 50. Total number of lions and peacocks is 50. So can you tell me what is the first condition? X plus y y equals to 50. Second condition, total number of legs. 140. 140. Now this is interesting. So total number of legs is 140. So how will I start with this? X plus y is equal to 1. Very nice. Lion को एक leg है. Lion को एक ही leg होता है. तो X lion से तो X legs. Peacock को भी एक ही leg होता है. तो x legs of lions, y legs of peacock is equal to 140. बराबर? वेदांत भी बराबर है? no sir. X plus y. लायन का 2 legs होता है. 4x. 2 legs होता है. 4x. 4 होता है. 4x 2y. थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना. अब यहाँ पे वो 5 रुपए 10 रुपए वाला नोट का कॉन्सेप्ट है.
वो 5 रुपए का नोट 10 रुपए का नोट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। सो लायंस को 4 लेग्स है एंड देयर आर x लायंस, 4 लेग्स एंड देयर आर x नंबर ऑफ लायंस, यानी टोटल लेग्स कितने हो गए लायंस के? 4x। पीकॉक को 2 legs and y number of peacocks. So 2 into 1. This concept I said is similar to your 5 rupee 10 rupee note, क्योंकि अब वो कंडीशन आ गया। Lions के 4 leg and number of lions are x, 4x, जो हमने 5 rupee 10 rupee note में किया था वैसा ही। 4 legs of lions into number of lions plus 2 legs of peacock into number of peacocks is equal to 140. अब ये सब डिविजिबल बाय 2 हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई बाय, हाँ याद है ना, तुमने दोनों तरीका मैंने बताया था, डिवाइड बाय 2 लिखो या फिर मल्टीप्लाई बाय हाफ लिखो। मैंने मल्टीप्लाई बाय हाफ किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 से डिवाइड किया, यानी क्या बचेगा? 2x plus 1y equal to 70. Now look at this, कौन सा कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, x को कि y को? y क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वेटेड है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट। वापस याद है ना, ये सब्ट्रैक्शन में स्टेप पे ध्यान देना है। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, पहले कौन सा आएगा? 1 plus y is x plus y is 50 क्योंकि from 1 लिखा है, फिर 2 2x plus y is equal to 70. ठीक है। now let's do subtraction, change of sign, minus minus minus, x minus 2x, 1x x minus 2x, minus 1x, 50 minus 70, minus 20. दोनों का माइनस गेट्स कैंसिल, सो x is equal to 20। अब सब्स्टिट्यूट किधर करें? Question 1. x के बदले 20 plus y is 50, what is y is equal to 30, therefore final answer, the number of lions are 20 and the number of peacocks are 30. The price of 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees. Price of 3 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Then the price of 2 chairs and 2 tables. The price of 2 chairs and 2 tables. The price of 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees. तो अपने को प्राइस ऑफ ईच चेयर मालूम है कि नंबर ऑफ चेयर्स मालूम है? Number of तुमको एक चेयर का प्राइस नहीं मालूम, तुमको नंबर ऑफ चेयर मालूम है, 3 चेयर है, तो एक चेयर का प्राइस क्या है नहीं पता। वैसे ही एक टेबल का प्राइस नहीं मालूम, नंबर ऑफ टेबल मालूम है। तो तुम्हारे पास है ना, यहाँ पे 2 चीज होता है, एक तो नंबर होता है और एक प्राइस ऑफ ईच। जैसे 5 रुपए के नोट वाला सम, तो तुमको प्राइस ऑफ ईच नोट मालूम है 5 रुपया, नंबर ऑफ नोट नहीं मालूम था, तो तुमने नंबर ऑफ नोट को x लिया। इस सम में क्या मालूम है, प्राइस ऑफ ईच मालूम है या नंबर मालूम है? नंबर मालूम है। अगर तुमको नंबर मालूम है, तुमको नंबर ऑफ चेयर्स मालूम है, तो तुम x किसको लोगे? प्राइस ऑफ ईच चेयर को x लोगे एंड प्राइस ऑफ ईच टेबल को y। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। yes. चेयर का नंबर, चेयर का प्राइस। मुझे चेयर का नंबर पता है 3 चेयर्स, नंबर मालूम है 3 चेयर्स, प्राइस नहीं मालूम। सो आई विल स्टार्ट विद प्राइस। let the price of each chair be rupees x and the price of each table be rupees y। ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है,
4,500 rupees. Price of 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees. Okay, अब मुझे बताओ फर्स्ट कंडीशन. X plus Y is equals to 4,000. 3x plus 2x 3x plus 2y is equal to 4,500. अच्छा ये सब में price of 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Okay, so 5 chairs, 5x, 3 tables, 3y. 5x plus 3y is equal to 7,000 rupees. 7,000. Okay, now let's solve this simultaneous. Now to solve this simultaneously, either we can equate x or y. Let's see. अगर मेरे को x को equate करना है, 3 और 5 में कोई भी common factor नहीं है, तो 3 और 5 का LCM आता है 15. इसको 15 बनाने के लिए multiply by 5. multiply by 3. add या subtract. Subtract. Now let's come to this one. 2 और 3 का LCM is 21 6. 2 और 3 का LCM is 6. इसको 6 बनाने के लिए multiply by 3. multiply by add या subtract. Subtract. इसको एलिमिनेट करें, x को कि y को. X. मेरे ख्याल से y इजी रहेगा, कम नंबर. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन 2 by 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड 2 by 2. सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो. 9x 9x plus 6y. 9x plus 6y is equal to 1,000. थर्ड इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10x plus fourth equation. Now we will subtract equation 4 from 3. So when I subtract 4 from 3, that is 9x minus 10x will become minus 1x. 6y cancel. 13,500 minus 14,000. Minus 500. 500. 500. X is equal to 5. So here we get x is equal to 500. अभी x तो मिल गया 500. अब कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें? फर्स्ट में कि सेकंड में? First. Ah. 3 into 500 plus 2y is equal to 4,500. So what is 2y? 4,500 minus 1,500. minus 4,500 minus 1,500 is 3,000. So what is y is equal to 1,500. 500. Now y का value मिल गया, x भी मिल गया. But my final answer is not to find the price of each chair and each table. My question is to find the price of 2 chairs and 2 tables. यही find है ना? yes sir. Yes, sir. So price of 2 chairs and 2 tables. तो अभी उसका प्राइस क्या रहेगा? 2 chairs, 2. Price of 2x 2 into 500. 2x plus हाँ एक मिनट. 2 chairs, एक चेयर का प्राइस x रुपीस है, यानी 2x plus 2 tables, 2. Each 2y. table y 2 into
500 8 2 plus into 500 into 2 into 1500. 2 into 500 यानी 1000, 2 into 1000 1500 यानी plus 3000. 3000. Total 30,000. amount becomes Rupees 4,000. final answer लिखना है. Total amount to be paid is 4,000 rupees. Is this clear, everyone? Yes. Fixed monthly income every year. There is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary was 4,500, and after 10 years, his monthly salary became 5,400. Find his original salary and yearly increment. मतलब अज्यूम करो संजय ने जब जॉब चालू किया ना, उसको 1000 रुपया पगार था, ठीक है, हर महीने का मंथली 1000 रुपया पगार था. फिर नेक्स्ट ईयर उसके मंथली सैलरी में 100 रुपया ऐड हुआ. तो आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर होने के बाद उसका मंथली सैलरी कितना हो गया? 1000 रुपीज था, उसमें 100 रुपीज ऐड हुआ यानी 1100. आफ्टर सेकेंड ईयर उसका सेम इंक्रीमेंट वापस आया, यानी 1000 रुपीज उसका बेसिक सैलरी है. 2 इयर्स के बाद 2 साल का इंक्रीमेंट ऐड हुआ. तो मुझे बताना 5 साल बाद उसका कितना इंक्रीमेंट ऐड होएगा? 500. अब समझ में आ गया? ये तुम्हारा सम है, ठीक है. तो उसका जो ये स्टार्टिंग सैलरी ना, ये उसका बेसिक सैलरी जब उसने ज्वाइन किया था तब का सैलरी है. बट एवरी ईयर देयर इज एन इंक्रीमेंट, और वो इंक्रीमेंट फिक्स है. हर साल का इंक्रीमेंट उसका फिक्स है. मतलब ऐसा नहीं कि कोई साल में उसने अच्छा काम किया तो ज्यादा मिला, कोई साल में कम दिया, ठीक है, ऐसा नहीं. फिक्स इंक्रीमेंट है हर साल. ओके, नाउ रीड दिस क्वेश्चन. Sanjay gets fixed monthly income. Every year there is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary, उसका total salary is 4,500, and after 10 years, his monthly salary became 5,400. Find his original salary and yearly increment. So क्या-क्या चीज पूछा है? पूछा है what is the original salary, ये पूछा है, and what is the yearly increment, ये पूछा है. कैसे स्टार्ट करोगे? Let original salary be X Original salary and yearly increment Monthly by yearly salary be Let the original salary be rupees X and the yearly increment be rupees Y. अच्छा, वो रुपीस का सिंबल डालो या पीछे रुपीस लिखो, वो चॉइस तुम्हारा है. Okay. Now first condition. After 4 years, उसका monthly salary became 4,500. Now think about it and tell me, 4 years के बाद में उसका जो ओरिजिनल सैलरी है वो भी 4 टाइम्स कुछ ऐड होने वाला है क्या? उसका ओरिजिनल सैलरी एक्स ही रहेगा ना? याद है ना, हमने अभी डिस्कस किया था, उसका ओरिजिनल सैलरी एक ही बार काउंट होता है, करेक्ट? और 5 साल बाद उसका 5 साल का इंक्रीमेंट काउंट हुआ, बराबर? इंक्रीमेंट 5 टाइम्स हो गया. सैलरी, उसका ओरिजिनल सैलरी 5 टाइम्स नहीं हुआ. उसका ओरिजिनल मंथली सैलरी जो है ना, ये ओरिजिनल सैलरी यानी ओरिजिनल मंथली सैलरी है, ठीक है. वो ओरिजिनल मंथली सैलरी उसका 1000 रुपीज ही था, बट इंक्रीमेंट 5 टाइम्स हुआ था. तो वैसे ही आफ्टर 4 इयर्स उसका मंथली सैलरी 4,500 हो गया, उसका टोटल सैलरी 4,500 हो गया. जैसे अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं 1000 प्लस 500 यानी उसका टोटल सैलरी इतना हो गया ना. वैसे इस केस में क्या हुआ, उसका टोटल सैलरी 4,500 हो गया. तो जो ओरिजिनल सैलरी वो एक ही बार काउंट होगा, प्लस अब बताओ 4y 4y. 4 साल का इंक्रीमेंट काउंट हुआ. एवरी ईयर का इंक्रीमेंट y रुपीज से, तो 4 इयर्स का इंक्रीमेंट यानी 4y. दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन. इजी है?
Yes, sir. अगर तुम ये समझोगे तो ये समझना इजी है. तुम डायरेक्ट करते ना सर मंथली ईयरली इंक्रीमेंट नहीं समझ में आया. ठीक है, अभी क्लियर हो गया ये पार्ट. आफ्टर 10 years उसका मंथली सैलरी कितना हुआ? 5,000. 5,400 rupees. Then y is equal to 5,000. Okay, 5,400 rupees. Let's start. तो उसका मंथली सैलरी x रुपीस ऐसी रहेगा. 10 years का इंक्रीमेंट यानी Plus y. I equals to 5,400 rupees. ठीक है. Now how will I solve it? Already ये coefficient equated है. Already ये coefficient equated है. Subtract. Subtract. Second. Equation 1 from equation y1. X gets cancelled. 4y minus 10y. Minus 6y. 6y. Minus 4,500 minus 5,400. Minus 900. 1100. Minus 900. 1100. So what is y is equal to minus 900 upon minus 6. Minus gets cancelled. 3 2s are 3 3s. 2 150. So y equivalent is 150. equals to 150. Substitute y is equal to 150 in equation 1. 1. X plus 4 4 in 4 8 2 1. 4 into 150 उधर जाएगा. 4 into 150 यानी 600. वो उधर गया तो minus 600. तो x is equal to 3,900. 3,900. the original salary is rupees 3,900 and yearly increment is 150. I hope you are clear about this. Yes. Now there are two people. Okay. The sum of the ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Find their today's age. Okay. We are not discussing about actress. Okay. Deepika is up jail mein. Sum of the ages of Priyanka and Deepika is 34 years. So how will it start? Let the present age of Priyanka Priyanka be X. Because present age and the present age of be y years. Deepika be y years. Okay. Sum of their ages 34. 34. 34 years. यानी first condition x plus y. Plus y is equal to 30. Is equal to Second condition. First condition easy था. Second condition. Priyanka is elder. Enter then. Mute By करो. 6. By Enter then X Deepika plus 6. by 6. By 6. प्रियंका. अभी हम लोग रूल यूज करेंगे. Let's use this rule. प्रियंका यानी x X is Is equal to elder. बस फटे हुए आवाज में नहीं बोला ना मैंने. Then Before a variable before the sign. before the sign. Then Deepika यानी By. By Constant constant after the sign. by 6. 6. okay. So what is the condition now? Let's see. Minus 6. X minus y is 6. 6. This is the second equation. Solving is easy. Plus y minus y. क्या करोगे? Add. Add. I suppose I can expect you to solve it. Okay. अभी इसका सिर्फ सेकंड सम बाकी है, वो हम रिवीजन के टाइम पे